Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Coral Publishers, and here is a book, Focus English Grammar, book 5. Children, today we are going to start with chapter number 11 and the name is Articles A and the. So yes, A and the are called articles. So here let's read the given sentences. Christopher Columbus was born in Italy in 1451. He was an explorer and a good sailor. He was the first person from Europe to discover America. The words a and the are articles. Here there are two types of article, definite and indefinite. So यहाँ पे a and the आप देख सकते हो सेंटेंसेस में लिखा गया है, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं और ये दो तरीके के होते हैं, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. ए और एन को हम इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कहते हैं और द को हम डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं. सो लेट्स लर्न अबाउट ए एन. सो ए एंड एन मीन्स वन. इन दोनों का मतलब वन होता है. तो कभी भी कोई चीज़ एक है तो ही हम इसे यूज़ करेंगे. ए एंड एन आर प्लेस बिफोर काउंटेबल नाउन्स इन द सिंगुलर नंबर. ए और एन जो है काउंटेबल नाउन्स के साथ लगाते हैं जो कि सिंगुलर नंबर में होते हैं. एग्जाम्पल है अ गर्ल, अ डॉग, an urn, an ostrich. A और an does not come before uncountable noun. ये uncountable noun से पहले नहीं लगाए जाते. Example, give me a salt. This is wrong. Salt is uncountable, इसलिए यहाँ पे a नहीं लगेगा. हम लिखेंगे give me some salt. Now she has intelligence. This is also wrong. Now let's learn about the uses of a. So we use a before words that begin with a consonant sound. A को हम consonant sound वाले words के साथ ही लिखते हैं. जैसे कि I need a pen. पेन का साउंड क्या है? प. तो प के साथ हम लिखेंगे a. My mother is a teacher. टीचर का साउंड क्या है? ट. सो ये सारे जितने भी आप व्यंजन, स्वर व्यंजन पढ़ते हैं तो जितने भी व्यंजन के साउंड है आप ये कह सकते हो उनके साथ हमें a लगाना है और जितने स्वर के साउंड उनके साथ हमें an लगाना है. We also write an a one-eyed man, क्योंकि यहाँ पे हम वन में व बोल रहे हैं. Since o one is pronounced as v and it has a consonant sound, we write a useful. U का साउंड आ रहा है य. So these are the words where we use a. Next comes an. We use an with words that that begin with a vowel sound. ऐसे words के साथ हम an लगाते हैं जो vowel sound के साथ शुरू होते हैं. I saw an eagle. E का sound आ रहा है. Next, I have an orange for breakfast. O का sound आ रहा है. So we also write an honest person, क्योंकि यहाँ पे h silent है, हम इसे बोलते हैं o का sound आता है. Now let's learn about the article the. The is used when we mean a particular person or thing. जब हम किसी एक particular person या thing की बात करते हैं तो हम the use करते हैं. Now let's learn more about a and the. When we speak of a person or thing for the first time, जब हम किसी person के बारे में बात करते हैं पहली बार तो हम a and use करते हैं. But अगर हम उसी person की बात दोबारा करते हैं तो हम the लिखते हैं. A is used with countables and singular nouns beginning with consonant sound, and an is used with countables and singular nouns beginning with a vowel sound. Now here are some examples, children. My dog saw a thief. Thief में th का sound आ रहा है, a thief. So we write a before thief and it could be any man, कोई भी आदमी हो सकता है. अब हम उसी thief की बात दोबारा कर रहे हैं तो हमने लिखा the thief ran away. वो चोर भाग गया. So now we are talking about the same thief we were talking about whom in sentence number 1. At times even when we have not used a noun earlier, समय के साथ अगर मान लो हमने noun को पहले use ना किया हो, it's very clear what we are talking about. In such cases also we use the. ऐसे cases में भी हम the use करते हैं. जैसे कि the milk is fresh. We know which milk. जब हमें पता होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है जो हम जानते हैं, जिसे हम पहले से जानते हैं, उसके साथ हम द लगा सकते हैं. मीन्स यहाँ पे हमें पता है कि किस पर्टिकुलर मिल्क की बात हो रही है. The mangoes in this basket are ripe.
इस बास्केट में जो मैंगोज हैं वो पके हुए हैं। सो अगेन हम उस बास्केट में रखे हुए मैंगोज की बात करें, इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया है। नाउ द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ, द को जो है होली बुक्स के नेम के पहले, न्यूज़पेपर के नेम के पहले, माउंटेन रेंजेस के नेम के पहले, रिवर्स के नेम्स के पहले, इंटरनल बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले, ऑर्डिनल नंबर्स के पहले, नेम ऑफ डायरेक्शंस के पहले और वेल नोन बिल्डिंग्स के पहले लगाया जाता है। सो दीज यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। इन सब के साथ हमें द लगाना होता है। द इज नॉट यूज विद द फॉलोइंग, अब इन चीज़ों के साथ हम द नहीं लगा देते हैं। किसके साथ? प्रॉपर नाउन के साथ हम द नहीं लगाते। मीन्स अगर किसी पर्सन का, किसी इंडिविजुअल का नाम है तो हम द नहीं लगाएंगे। विथ अनकाउंटेबल नाउन्स द नेम मटीरियल, मीन्स अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम द नहीं लगाते। बट वी यूज द विथ सच नाउन्स वेयर दे आर मेड पर्टिकुलर, लेकिन हम द वहाँ ज़रूर लगाते हैं जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं। जैसे आई नीड सॉल्ट टू ऐड इन द वेजिटेबल, मीन्स इस सब्जी में मुझे नमक डालने के लिए चाहिए। प्लीज़ पास मी द सॉल्ट इन द पैकेट, उस पैकेट में जो सॉल्ट है वो मुझे पास ऑन करो। तो यहाँ पे हमने फिर से द सॉल्ट लिखा है। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द एक्सरसाइज सेक्शन। ए एक्सरसाइजेस, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। ए और एन से हमें इसे फिल अप करना है। सो पहला देखेंगे, फर्स्ट है एग्रेसिव पर्सन, तो किसका साउंड आ रहा है? ए। सो हम लिखेंगे एन एग्रेसिव पर्सन। ब्यूटीफुल डॉल, किसका साउंड आ रहा है? ब का, तो ब का हो जाएगा अ ब्यूटीफुल डॉल। थर्ड है स्मॉल ऑक्टोपस, किसका साउंड आ रहा है? स का, अगेन अ स्मॉल ऑक्टोपस। फोर्थ है इंटरेस्टिंग स्टोरी, किसका साउंड आ रहा है? ई का, तो हम लिखेंगे एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट बी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। ही लिव्स इन डैश स्मॉल विलेज, अ स्मॉल विलेज, क्योंकि स का साउंड आ रहा है। शी हैज गॉट डैश नाइस कोट, न का साउंड आ रहा है तो अ नाइस कोट। आई हैव डैश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क, सो एन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ई का साउंड आ रहा है। सो डू द रेस्ट एज योर होमवर्क। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू सी एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द। माई ब्रदर इज इन डैश क्लास, इन द क्लास मीन्स क्लास के अंदर है, पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है इसलिए द क्लास। हनी इज अ फनी पर्सन, हनी एक फनी इंसान है। सो डू द रेस्ट क्वेश्चंस एज ए होमवर्क। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डी पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द। ए द फिल करना है। सो यहाँ पे क्योंकि प्रेम है, प्रेम के साथ हम इनमें से कुछ भी यूज नहीं करेंगे, तो क्रॉस लगा देंगे। प्रेम बिल्ट डैश हाउस लास्ट मंथ, दिस इज मंथ। सो प्रेम बिल्ट अ हाउस, एक घर बनाया उसने पिछले महीने। डैश हाउस हैज टू स्टोरीज, उस घर में दो क्या है? फ्लोर्स हैं, तो हम लिखेंगे द हाउस, क्योंकि उसी पर्टिकुलर घर की बात दोबारा हो रही है। डैश फर्स्ट फ्लोर हैज डैश लिविंग रूम, किचन एंड 2 बेडरूम्स। अब हम इसी घर की बात करें जो प्रेम ने बनाया था, तो हमने लिखा द फर्स्ट फ्लोर हैज अ लिविंग रूम, फर्स्ट फ्लोर में एक लिविंग रूम है, अ किचन एंड 2 बेडरूम्स। सो सिमिलरली चिल्ड्रन fill in the rest of the answers. Now E part, insert the in the following sentences. the हमें लगाना है and wherever you think it's necessary. So Vinay is bravest boy in the class. अब विनय को कंपेयर किया जाए पूरे क्लास से, तो जब हम कंपेयर करते तो हम लिखते हैं is the bravest boy in the class. Clear? So Sunday is first day of the week. Sunday is the first day of the week. Clear children? Next F exercise. Insert a and the wherever necessary and put a cross when a and the is not necessary. तो जहाँ पे a and the की जरूरत है वहाँ पे हमें लिखना है, और जहाँ जरूरत नहीं वहाँ पे क्रॉस लगाना है। I went to dash airport at I went to the airport at 5 a.m. yesterday. I had to catch a flight to Paris. So do the rest as your homework.
And with this, children, we have completed articles, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.